Welcome to the part 2 of ADAS chapter. In the last class, we have completed so many things, like we have discussed the ADAS concept, APC, MPC, propensity to consume, propensity to save, full employment, involuntary unemployment, voluntary unemployment. Then we have learned the concept of chapter 8 ADAS approach and saving and investment approach. Last second part is left, that is very important also, the equilibrium level. There are three perspective of the equilibrium level: full employment, overemployment and underemployment, which is also known as inflationary gap, excess demand, deficit demand, also known as deflationary gap. So quickly we'll proceed with the second part and complete this ADAS chapter. Okay, so give a heading: equilibrium level. Equilibrium level. But ma'am, in yesterday's class we have done the equilibrium level. Equilibrium level will be achieved only when at the full employment level, when AD is equal to AS and S is equal to I approach. But this is according to the classical economist. According to the Keynesian theory, equilibrium level can be achieved at 3 points. Number 1, at full employment. At full employment. Number 2, overemployment. Overemployment. Number 3, underemployment. Now what is the meaning of all these three things? Full employment, overemployment, underemployment. Full employment means when every person in an economy is working at the existing wage rate, जितना उनको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उनको मिल रहा है, that concept is known as full employment. Overemployment means मतलब एक पर्सन के पास एक से ज्यादा काम है काम करने के लिए, मतलब हद से ज्यादा काम है लोगों के पास करने के लिए. दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ओवर एम्प्लॉयमेंट. ना फुल एम्प्लॉयमेंट ही प्रैक्टिकल है, ना ओवर एम्प्लॉयमेंट ही प्रैक्टिकल है. सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल क्या है अगर है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स लोगों के पास काम ही नहीं है. जितना एक्चुअल डिमांड होना चाहिए उतना डिमांड या जितना उतने लोग ही काम करने के लिए नहीं है. मतलब डिमांड नहीं है, आउटपुट प्रोडक्शन नहीं है, तो लोग काम भी नहीं कर रहे हैं. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज ऑफ द डेफिसिट डिमांड अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अराइज होता है. बिकॉज ऑफ द एक्सेस डिमांड ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है. और फुल एम्प्लॉयमेंट तो मतलब जहां पे आपका डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है. तो ओवर, सबसे अगर एमसीक्यू पूछा जाएगा, ओवर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कब होता है? इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड. इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड. अंडर एम्प्लॉयमेंट कब होता है? इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड. इन केस ऑफ डेफिसिट डिमांड. और फुल एम्प्लॉयमेंट में तो जहां पे आपका ऑब्वियसली बोथ द थिंग्स आर इक्वल, जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता है. अब इन तीनों का आपका ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो एक एक करके एक्सप्लेन करते हो. तो लेट्स स्टार्ट विद द फुल एम्प्लॉयमेंट. गिव अ हेडिंग फुल एम्प्लॉयमेंट. नाउ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी वी हैव लर्न इन लास्ट क्लास में, बट फिर भी अगर रिवीजन करना है तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या होगा? व्हाट इज माय फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन? सपोज इफ दिस इज माय इनकम, इन द एक्स एक्सेस वी आर मेजरिंग इनकम, दिस इज वाई एक्सेस वी आर मेजरिंग ADAS, एग्रीगेट डिमांड. सो दिस इज माय वाई, this is my Y and this is my C. This is my C. Fine. AD. This is my AD. C plus I and this is my Y. और ये जो पॉइंट है जहाँ पे लोग मीट कर रहे हैं, this point is known as equilibrium level. This point is known as equilibrium level. So this is full employment. दिस इज 45 डिग्री. इसको अज्यूम करते हैं हम लोग 45 डिग्री पर, और कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो. तो यहाँ पर तो एट, इसको आप नाम दे दो. सपोज इफ दिस इज ये, तो इसको आप नाम दे दो Q, इसको आप नाम दे दो O. तो ये हो गया OQ लेवल. एट OQ लेवल इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट, और वहां पे आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे. फाइन. दिस इज अ डायग्राम फुल एम्प्लॉयमेंट. and you just need to explain the diagram. In the x-axis we are measuring income, in the y-axis we are measuring AD, and OQ is the point where
OQ is a point where AD and Y is meeting, and E is a equilibrium point at full employment equilibrium. Fine. Copy this. Now the next point is underemployment equilibrium. Underemployment equilibrium, as you can see, income in the x axis and AD in the y axis. and कोई भी सिचुएशन अगर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट या ओवर एम्प्लॉयमेंट, तो किसी के लिए भी वी नीड टू मीट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए दिस, सपोज दिस इज वाई एंड दिस इज एडी, इन दोनों का जहां मीटिंग हो रहा है, दिस इज माई इक्विलिब्रियम लेवल. फाइन, ये तो इतना समझ में आता है. बट यहां पर हम लोग पढ़े अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है डिमांड इज लेस, डिमांड कम है, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है. लोगों के पास काम नहीं है तो ऑब्वियसली उनका इनकम कम है. इनकम कम है तो ऑब्वियसली वो डिमांड नहीं करेंगे, ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे. तो ये जो रेड लाइन है अब ऑब्वियसली फुल एम्प्लॉयमेंट से कम नीचे में आएगा, दिस AD1. तो आपका यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? दिस इज माई न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माई Q एंड दिस इज माई Q1, दिस इज O. तो OQ was the first employment equilibrium, but OQ1 because of the underemployment situation, we are explaining underemployment. तो OQ1 because of the less demand, the AD is downward slope, मतलब AD का जो ग्राफ है वो नीचे में है, and OQ1 is my new equilibrium point. This is E1. And this situation is also called deficit demand or deflationary gap. इस सिचुएशन को ये जो गैप है, एक सेकेंड आई विल शो यू, ये जो गैप दिख रहा है आपको इन दोनों के बीच में, दिस गैप इज नोन एज डेफिसिट डिमांड. फाइन, डेफिसिट डिमांड बोल सकते हो, डिफ्लेशनरी गैप बोल सकते हो. नोट्स ऊपर में दिया हुआ है, आई विल शो यू. ओके, तो फर्स्ट कॉपी. First copy this. Now the third one is over full employment equilibrium. Over full employment equilibrium में obviously we will make everything same. सबसे पहला obviously Y का shape 45 degree at 45 degree, then AD, then income, all this thing. The most important thing is ओवर एम्प्लॉयमेंट. ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब एक्सेस डिमांड, हद से ज्यादा लोगों के पास काम है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्या होगा? डिमांड लाइन ऑब्वियसली यहाँ पर. तो ये जो पॉइंट आएगा, दिस पॉइंट E1, एंड दिस इज कॉल्ड आपका इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड. उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड. फाइन, copy this. When you will go to chapter 8 में there is a topic equilibrium level. Equilibrium level में you will see full employment, underemployment और over full employment in the book of संदीप गर्ग. तो उसमें you will get the explanation. 2 लाइन का explanation है बस, कि क्या होता है over full employment, क्या होता है underemployment और क्या होता है full employment. उसको डायग्राम explain करके, डायग्राम बनाकर explain कर देंगे 2 लाइन में सिर्फ. Copy this and then we'll proceed. See how to write an answer of inflationary gap. सबसे पहले क्या लिखेंगे? As you can see the definition. जिसको नोट्स चाहिए, those who know me kindly send me the text. I'll send the PDF of this. जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं kindly take the screenshot because in this question, this topic is very important. To explain the concept of inflationary gap. Inflationary gap, as you can see here. डेफिनेशन लिखेंगे. डेफिनेशन लिखने के बाद एज यू कैन सी द डायग्राम हियर द सेम, एंड द इन्फ्लेशनरी गैप का जो आपको ये है, दिस देखो, दिस इज अ इन्फ्लेशनरी गैप. ये जो एक्सेस पॉइंट था, ये जो एक्सेस है AE1 इज माई द एक्सेस डिमांड, और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप. उसका एक्सप्लेनेशन, सी दिस इज द एक्सप्लेनेशन, इस तरीके से.
These are my handwritten notes. So you can take the screenshot of this till here. And then you have explained the concept of deflationary gap. This is a definition, and then the explanation of this. The explanation में देखो the diagram and the difference between these two. देखो ये रहा आपका डेफिसिट डिमांड, और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस इज कॉल्ड डिफ्लेशनरी गैप. क्लियर? काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड प्रोसीड. Definition, picture, and this is a explanation. Okay. Now the last chapter, chapter 9, and chapter 9 is totally theoretical. Chapter 9 में you have two things, that is inflationary gap, deflationary gap. excess demand क्या होता है, deficit demand क्या होता है. तो ग्राफ तो मैंने करवा दिया, फटाफट इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं, एंड देन वी आर डन विद दिस क्लास. एंड आफ्टर दिस, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मैक्रो इकोनॉमिक्स, विल टेल द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन डेवलपमेंट एज वेल. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम. एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड, एज वी ऑल नो, एक्सेस डिमांड जब आपका एडी इज ग्रेटर देन एएस, द कीवर्ड, you will get this note in the Sandeep Garg revision of key points chapter 9 के end में you will get this page, and this page is very 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 important. अगर आपने chapter 9 नहीं किया है, अगर आपने chapter 9 नहीं किया, एकदम टच नहीं किया है, रिविजन की पॉइंट्स पढ़ के जाएंगे, आपका chapter 9 कंप्लीट हो जाएगा. मैं बोल रही हूँ ये. Excess demand refers to a situation when AD is greater than AS. This is a keyword corresponding to the full employment level of output in the economy. Excess demand कब होता है? When AD is greater than AS at the full employment level. This is excess demand. और excess demand को ही inflationary gap बोलते हैं. जो दोनों के बीच का difference होता है उसको inflationary gap बोलते हैं. रीजन फॉर एक्सेस डिमांड. एक्सेस डिमांड होने का क्या कारण है? बिकॉज लोगों का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाता है. लोगों का कंज्यूम करने की इच्छा, लोगों का कंज्यूम करने का विलिंगनेस इज इंक्रीजिंग. टैक्स कम हो जाता है, टैक्स कम हो जाएगा तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, और खर्चा कम हो जाएगा तो आप ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा खर्च करोगे, क्योंकि आपका जो गुड्स है वो सस्ता हो गया है, जिसके वजह से यू विल स्पेंड मोर. एक नया आईफोन आने के वजह से जो आपका पुराना वाला जो आईफोन होता है वो काफी सस्ता हो जाता है, काफी चीप हो जाता है कंपेयर टू द न्यू आईफोन. तो जो जिसका अभी आईफोन 17 मार्केट में चल रहा है, सितंबर के मंथ में आईफोन 18 आएगा. आईफोन 18 आने की वजह से जो आईफोन 16 और आईफोन 17 का जो प्राइस रिड्यूस होगा, उसमें जो भी चेंजेस आएंगे, उसके एक्सेस डिमांड 16 का, आई डोंट नो अबाउट द 18 का प्राइस, 18 का डिमांड ऑब्वियसली होगा, बट 16 और 17 का भी इक्वली डिमांड, जो पहले लोग नहीं खरीद सकते थे अब उसको भी खरीदेंगे. तो रिडक्शन इन द टैक्सेस, टैक्सेस कम हो जाने के वजह से या प्राइस कम हो जाने के वजह से आपका डिमांड बढ़ जाता है. गवर्नमेंट अपने खर्चा बढ़ा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देता है, बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करने लग जाता है, जिससे कि हमारा कन्वीनियंस बहुत इजी हो जाता है. इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं. एक्सेस डिमांड के वजह से हमारा इंपोर्ट, क्योंकि हमारे पास हमारा ही गुड्स, हमारे ही लोग काफी है अपना नीड्स को सेटिस्फाई करवाने के लिए, तो इंपोर्ट हम लोग कम कर देते हैं. एक्सपोर्ट बढ़ जाता है एक्सेस डिमांड में, क्योंकि डिमांड, एक्सपोर्ट मतलब सामान बेचना, अब हमारा डिमांड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में और फॉरेन कंट्रीज में, तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, इंपोर्ट कम हो जाता है. और डेफिसिट फाइनेंसिंग, आई होप यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग. हाँ, सो डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसा पॉलिसी होता है गवर्नमेंट का. अच्छा, गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इशू करता है, दैट पॉलिसी इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी. और अगर आरबीआई कोई पॉलिसी इशू करेगा तो उस पॉलिसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. अगर आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, कोई भी चीज में चेंजेस करता है तो दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी परफॉर्म इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स, वेयर एज इफ अ गवर्नमेंट विल टेक एनी पॉलिसी और इंट्रोड्यूस एनी पॉलिसी जिसके वजह से वो अपना कुछ भी पॉलिसी के थ्रू चेंजेस कर रहा है, तो इफ गवर्नमेंट इज डूइंग इट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी, एंड व्हेन आरबीआई इज डूइंग इट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिस्कल पॉलिसी है जहां पे गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करता है, जितना उसको रेवेन्यू मिला नहीं उससे ज्यादा खर्च करता है, जस्ट टू अट्रैक्ट लोगों का डिमांड बढ़ाने के लिए. तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ एक्सेस डिमांड.
नेक्स्ट, उसके वजह से, रीजन तो पढ़ लिया, उसके वजह से इम्पैक्ट, अगर कारण है तो उसके वजह से एक्सेस डिमांड की वजह से हमारे इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमी इज एक्सेस डिमांड लीड्स टू इन्फ्लेशन। ज्यादा डिमांड, लोग के पास सप्लाई नहीं है, डिमांड ज्यादा, तो ऑब्वियसली चीजों का प्राइस बढ़ना स्टार्ट होगा। Continuous rise in price without any increase in output and employment as the economy is already operating at full employment level. कोविड के टाइम पे व्हेन वी वर एक्सपीरियंसिंग द प्राइसेस ऑफ हैंड सैनिटाइजर और मास्क, तो ये सारी चीजों का प्राइस बढ़ रहे थे, चीजों का किल्लत था, प्रोडक्शन तो होना पॉसिबल ही नहीं था। तो जितना प्रोडक्शन है उसी प्रोडक्शन पे हम चीजों का प्राइस बढ़ा देंगे, जो अफोर्ड कर पाएगा उसको खरीदेंगे, जो नहीं कर पाएगा उसको नहीं बेचेंगे। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द एक्सेस डिमांड मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। अभी जैसे एलपीजी का प्राइस इज इंक्रीजिंग, डू यू थिंक कि अगर ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाते हैं, अगर वॉर सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, डू यू थिंक कि एलपीजी का प्राइस विल गो डाउन? और डू यू थिंक कि रेस्टोरेंट जो अभी प्राइसेस ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, क्या वो अपना प्राइसेस कम लेंगे? नहीं। एक बार जो मार्केट में, एक बार जो इन्फ्लेशन आ जाता है, एक बार जो एग्जिस्ट कर जाता है, तो गवर्नमेंट को भी पता है कि नहीं, इसको, इससे लोग कोप अप कर लेंगे, तो वो चीज वापस नीचे आने वाला नहीं है। आज से 2 महीना 3 महीना पहले सिल्वर वर ट्रेडिंग एट अ प्राइस ऑफ 90,000 पर केजी, बट अचानक से ड्यू टू द सडन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सिल्वर इट टचेस टू 3,50,000 पर केजी। जस्ट इमेजिन द डिफरेंस, 4x से बढ़ा है वो, 90,000 से 3,50,000। उस प्राइस को कट डाउन करने के लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम किया, अभी वो स्टेबलाइज है 2,80,000 और 3,00,000 पर केजी। ठीक है, जो 90,000 पे मिला, मतलब एक नॉर्मल सा, अगर आप सिल्वर का पायल, अगर आप चांदी का पायल खरीदोगे तो यू बिफोर 90, तो मतलब एट द प्राइस ऑफ 90,000 आपको एक नॉर्मल सा पायल यू विल गेट एट 7 to 8,000 रुपीज में। वही सेम चांदी का पायल नाउ एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 3,00,000 पर केजी, नाउ यू विल गेट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज कम से कम 18 to 20,000 रुपीज में, या उससे भी ज्यादा में। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्या आपको लगता है कि अब ये प्राइस कम होगा? अब आपको लगता है कि वापस से जो सिल्वर का प्राइस है वो 120 या उस पे जाएगा? नहीं जाएगा, बिकॉज दिस विल रिमेन सेम। तो बोलने का मतलब ये है कि एक बार जो चीजें इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाती है, उससे कोप अप करना या उसको नीचे लेकर आना महंगाई को, उससे वापस नहीं होगा। तो इम्पैक्ट ऑफ द एक्सेस डिमांड, एक इम्पैक्ट एक ही है हमारा, दैट इज द इन्फ्लेशन प्राइस, जिसके वजह से एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ नहीं रहा है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन आ जाता है। समझ में आ रहा है? एक्सेस डिमांड इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। रीजन क्या क्या हमने पढ़ा, और रीजन की वजह से उसका इम्पैक्ट। नाउ डेफिसिट डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिसिट डिमांड? उसी का अपोजिट, जहां पे AD इज लेस देन AS कोरेस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दीज टू आर द इंपॉर्टेंट की वर्ड्स। उसी को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ऑलरेडी हम लोग ग्राफ पढ़ लिया है। रीजन फॉर डेफिसिट डिमांड, एक ट्रिक बताऊं, इंक्रीज, रीजन फॉर एक्सेस डिमांड आपने पढ़ा है, वहां पे जो पढ़ा है उसी का अपोजिट करके यहाँ पे लिख देंगे। वहां पे पढ़ा था इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वहां लिखा था डिक्रीज इन टैक्सेस, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन टैक्सेस। डिमांड कम होने का मतलब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स चार्ज कर रही है, टैक्स ज्यादा ले रही है, तो दैट मीन्स प्राइस महंगा हो जा रहा है। प्राइस महंगा हो जाता है तो लोग खरीद नहीं रहे हैं, लोग खरीद नहीं रहे हैं तो डिमांड कम है। तो डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी खर्चा नहीं कर रही है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कम हो गया है, इंपोर्ट बढ़ गया है और एक्सपोर्ट कम हो गया है। और जिसके वजह से हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी पर, लीड्स टू द फॉल इन द प्राइसेस, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा तो इकोनॉमी को ही लॉस होगा, जिसके वजह से प्राइसेस को कम करना पड़ेगा, विच इन टर्न लीड्स टू द फॉल इन दी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर हम लोग का प्राइस कम कर रहे हैं तो जिसके वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट लेवल भी ऑब्वियसली कम होगा। फाइन। अब अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को तो सुधारना भी पड़ेगा, उस प्रॉब्लम का हमें इन सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अगर एक्सेस डिमांड है उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट को अपने फैसिलिटीज, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, डेफिसिट फाइनेंसिंग को ठीक कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा ना मिले। लोगों को ज्यादा सुविधा नहीं मिलेगा तो वो ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे।
टैक्सेस को बढ़ा देना होगा, डिक्रीज इन मनी सप्लाई और एवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जितना जो लोन मांगे उनको उतना लोन नहीं देना है, बैंक रेट बढ़ा दो आप, रेपो रेट बढ़ा दो आप। देखो कैसे अगर इंटरेस्ट रेट 9% से 14% होगा, लोग अपने आप ही लोन लेना बंद कर देंगे। लोन नहीं लेंगे तो उनके हाथों में पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो डिमांड नहीं होगा, और डिमांड नहीं होगा तो आपका एक्सेस डिमांड का सिचुएशन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सबसे खूबसूरत चीज ही यही है, वन थिंग लीड्स टू अनदर। आपको रटने का कोई जरूरत नहीं है, एक चीज दूसरे को लीड करती है। तो देखो यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी से क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, आपने बैंकिंग चैप्टर में, मैं अज्यूम कर रही हूं कि बैंकिंग चैप्टर में आपने ये किया होगा। नेक्स्ट, तो क्वालिटेटिव मेजर, देखो क्वांटिटेटिव मेजर में कोई भी दो लिखोगे, बैंक रेट और रेपो रेट, और क्वालिटेटिव मेजर में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और मॉरल सॉशन। ठीक है, नेक्स्ट वही मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड। मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड में ऑब्वियसली उसी का अपोजिट, गवर्नमेंट को अपना स्पेंडिंग बढ़ा लेना होगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम कर लेने होंगे क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड है नहीं, टैक्सेस को कम करना होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाना पड़ेगा, और जिससे लोगों को अवेलेबल लोन अवेलेबल करवाना पड़ेगा क्योंकि डिमांड नहीं है। लोगों को इंकरेज करें कि नहीं आप डिमांड करो, आप डिमांड करो, आप डिमांड करो, तो लोगों को एनकरेज करने के लिए उनके हाथ में पैसा भी तो होना चाहिए, तो एवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। और वो कैसे पॉसिबल होगा? बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप्स के होते हैं, क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। एम आई क्लियर? दीज आर द 2 points ऑफ 3 points ऑफ करेक्टिंग डेफिसिट डिमांड। अगर आप ये चैप्टर पूरा पढ़ने जाओगे, हम लेट मी टेल यू, आई नो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, पूरा साल नहीं पढ़ा है, अभी भी नहीं पढ़ रहे हो, अगर आई एम टेलिंग यू, लिख के ले लो, अभी जो आज के क्लास में और कल के क्लास में आप जो अटेंड कर रहे हो, इसमें से यू विल गेट 10 to 12 मार्क्स का पेपर। अगर नहीं आएगा आप मेरे को मैसेज कर देना, फॉर श्योर। हाँ, उसमें एक न्यूमेरिकल भी रहेगा। अगर आपने एडीएएस और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल किया है तो यू कैन डू, अगर नहीं अब लास्ट मिनट पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल इज अ लॉट, आई डोंट नो, अदर्स टीचर्स विल डू कि बेटा रिविजन क्लास कर लो और बेटा वन शॉट में करा देते हैं, बट माई एथिक्स लाइक कि अगर आपको करवा देना तो मैं करवा दूंगी, बट उतने कम टाइम में 4-5 सम्स करवाने से अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि नहीं यू विल अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, नहीं। रियल एक्चुअल क्लास में मैंने मोर देन 30 to 35 सम्स करवाए ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एडीएएस चैप्टर। जो नॉर्मल लाइफ क्लास चलते हैं मेरे, उसमें एडीएएस के 30-35 सम्स करवाए मैंने। पूरा सैंपल पेपर का एक सैंपल पेपर, अरिहान का सैंपल पेपर, ओसवाल का सैंपल पेपर उठा कर हर एक का एडीएएस का सम्स करवाया। तो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि नहीं मैं लास्ट डे पे रिविजन के नाम पर 5-6 क्वेश्चन करवा दूं और बच्चों को बोलूं नहीं बेटा इसी में से आएगा, इसी को पढ़ लेना। नहीं, अगर आपने नहीं किया है अभी भी तो मत करना, फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला का नोट्स दे दूंगी मैं, फॉर्मूला याद कर लेना और याद करके चले जाना, और लिखोगे हाफ मार्क्स मिलेगा, फाइन। और लास्ट मिनट में कोई नया चीज करने में बैठना, ये सब थ्योरी है, थ्योरी तो चलो आप लास्ट मिनट में करके चले जाओगे। समझा दे रही हूं, ये सिर्फ एक पेज दिख रहा है, सिर्फ एक पेज, रिविजन ऑफ की पॉइंट, ये एक पेज से यू विल कंप्लीट कम से कम 8 से 10 पेज ऑफ चैप्टर 9। दिस इज चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 ऑफ 8 पेजेस। 8 पेजेस को मैंने एक पेज में यहाँ पे कंप्लीट किया है, एंड पूरा अच्छे समझा के किया। ऐसा नहीं कि मैम ऊपर से करवा दिए, नहीं, आप इसमें जाओगे क्योंकि सीबीएसई वांट द कीवर्ड इज देयर। क्लियर? ओके, सो दीज आर द questions and the important topic of Indian development I have made. Quickly discuss करेंगे। सबसे पहला chapter 1, there are 8 chapters in Indian development as you all know। तो 8 चैप्टर्स में से द फर्स्ट चैप्टर ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहाँ पे अंडर द ब्रिटिश रूल व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। तो उसमें से डेमोग्राफिक कंडीशन पढ़ेंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन मीन्स बर्थ रेट, मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट रेट, ये सब क्या था सिचुएशन, वो सब पढ़ेंगे। देन डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गिरने का क्या रीजन था। Positive contribution of the British and year of great divide, that is called 1921 and first official census, first time हमारा population count कब हुआ था, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इस फर्स्ट चैप्टर में। तो ये 4 टॉपिक तो छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री,
पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एंड फर्स्ट ऑफिशियल सेंसेस। नेक्स्ट चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 को मैंने मर्ज कर दिया है यहाँ पर। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 2 नेम इज 1950 to 1990 एंड चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो चैप्टर 3 अगर 1950 to 1990 के बारे में बात किया जाए, जहाँ पे हमारे पास हमारा कंट्री तो आ चुका था बट बहुत ज़्यादा ही खराब सिचुएशन में हमारे पास आया गया था, जिसके वजह से सब कुछ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टर्शियरी तो बात ही छोड़ो, सारे सिचुएशंस की हालत बहुत खराब थी। उस सिचुएशन में चीज़ों कैसे ठीक किया जाएगा और कैसे नहीं किया जाएगा, तो वो चैप्टर था चैप्टर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो कि था 1956 में। 1956 में इस आईपीआर के अंदर में 3 इंडस्ट्रीज आते हैं, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज है, शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज है, शेड्यूल सी में जो बचा कुचा रह जाता है वो प्राइवेट के हाथों में चला जाता है। पहला वाला पूरा का पूरा आपका गवर्नमेंट के अंडर में होता है, शेड्यूल बी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड शेड्यूल सी टोटली बिलोंग्स टू दी प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें ये, और इसी चैप्टर में आपको मिलेगा टैरिफ एंड कोटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बट दैट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट। टैरिफ, कोटा एंड रीजन फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, काइंडली ऐड हियर रीजन फॉर इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड कोटा, द शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, ये सारी चीजें। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको चैप्टर 3 में मिलेगा, वो तो हम लोग बाद में करेंगे। चैप्टर 3 में अगर हम लोग आएंगे तो चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन इज रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म जब चैप्टर 3 खोलोगे तो फर्स्ट टॉपिक इज रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म, देन यू विल गेट द कंसेप्ट ऑफ एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नॉट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नहीं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इनेक्टेड इन द ईयर 1991, जुलाई 1, 1991, और अंडर दिस एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटाए गए। अगर इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर इंडस्ट्रीज, इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, ग्रो करना है, यू कैन डू इट, पेपर वर्क बाद में होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड। Privatization, transfer of ownership from the public sector to the private sector through the process of disinvestment. पब्लिक कंपनी अपना पार्ट ऑफ शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर को बेच रही थी या तो ओनरशिप ट्रांसफर कर रही थी, तो उस 2 प्रोसेस से आपका प्राइवेटाइजेशन होता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन होता है चीजों को इजी करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। प्राइवेटाइजेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द पब्लिक सेक्टर, सॉरी, from the public sector to the private sector, and disinvestment is important, selling of the public sector units to the private sector unit. Globalization, the national integration between the one country and the rest of the world, भाईचारा दिखाना, दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना, जिससे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा इंक्रीज हो पाए, और उसका अपना ही फायदा है, अपना ही डिसएडवांटेज है, मेरिट एंड डिमेरिट छोड़ के नहीं जाएंगे, फाइन। और उसी के बाद में है द सेकेंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर 3, दैट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स, आपका हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसके वजह से उसका एडवांटेज, उसका डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग महारत्नास, मिनी रत्नास एंड नवरत्नास, मिनिमम 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच, 3 examples of. Okay, so the next topic is rural development. Rural development, as we all know, कि बैकवर्ड एरिया और द विलेज एरिया को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, तो उसमें उसका कंसेप्ट रूरल क्रेडिट, जो कि गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव लेती है फार्मर्स को लोन देने के लिए, रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में क्रेडिट लोन देने के लिए एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसका सोर्सेज क्या क्या होते हैं, 2 सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज नॉट इन आवर सिलेबस, वी विल गिव फोकस ऑन द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नाबार्ड, एंड नाबार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द एपेक्स अथॉरिटी ऑफ द एग्रीकल्चर बैंकिंग। एग्रीकल्चरल बैंकिंग में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे एपेक्स अथॉरिटी होता है नाबार्ड का। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में RBI है, लॉ एंड ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में आपका नाबार्ड है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का शॉर्ट नोट, ऑर्गेनिक फार्मिंग का शॉर्ट नोट,
And table form analysis. What is the meaning of table form analysis? Table form analysis, that means आपको एक डेटा दिया हुआ रहेगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. यहाँ पे सपोज आपका 30%, यहाँ पे 20%, यहाँ पर आपका 60% अगर ऐसे रहा, सपोज इफ इज 10%, इस डेटा के ऊपर में यू नीड टू मेक अ कमेंट कि क्या चेंजेस हुए हैं इन द प्राइमरी सेक्टर टू द सेकेंडरी सेक्टर टू द टर्शरी सेक्टर. तो आपको इसमें कमेंट करना पड़ेगा, टेबल फॉर्म एनालिसिस. And the very important thing, schemes to develop rural development. Rural development में क्या क्या schemes है वो वहां पर दिखेगा. Next we have human capital formation. Human capital formation, that means human capital जैसे हम लोग, we the human are the example of human capital. जो उनके पास skill है, knowledge है, capability है, उनको बोलते हैं human capital. उसी knowledge, उसी skill, उसी capability को use करके जो वो कोई चीज create करते हैं या society के towards जो contribute करते हैं उनको बोलते हैं human capital formation. तो physical capital और human capital के बीच में difference is important. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन शॉर्ट नोट इज इम्पोर्टेंट. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का वेज होता है, देयर आर सो मेनी वेज कि गवर्नमेंट किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बनाती है. तो देयर आर 5 वेज: एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. एजुकेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. इनमें से कोई भी एनी वन आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 इज इजी. चैप्टर 6 इज एम्प्लॉयमेंट. उसमें से यू कैन एक्सपेक्ट अ 1 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन और आपका उसमें से आ सकता है द डेटा. एक ग्राफ है उसमें, उस बुक में ही बहुत सारा ऐसा करके ग्राफ दिया हुआ है, तो उसमें डेटा दिया हुआ फ्रॉम 2015 टू 2025 का डेटा दिया हुआ है. तो आपको उसके बीच में आपको एनालाइज करना है कि इस 10 सालों में क्या क्या डिफरेंस हुए हैं. तो यू विल गेट अ पिक्चर क्वेश्चन और द ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स. चैप्टर 8 NCERT questions. When you are following VK Ori or Sandeep Garg in both the books, you will get at the end of the chapter you will get NCERT का सोल्यूशन. एनसीईआरटी का सोल्यूशन उसमें दिया हुआ है और हॉट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन को छोड़ के जाना ही नहीं है. तो वो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान, चाइना और इंडिया. सिंस तीनों का ही रिफॉर्म्स हुए हैं, तीनों ही कंट्री रिफॉर्म्स हुए हैं, बट सबका अलग अलग टाइमिंग में हुआ है. तो अब कौन कौन सी सिचुएशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो उसका कंपैरिजन इज इम्पोर्टेंट. 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना का इम्पोर्टेंट है. ग्रेट पॉलिटेरियन इम्पोर्टेंट है. आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड इम्पोर्टेंट है. पाकिस्तान का डेमोग्राफिक कंडीशन इम्पोर्टेंट है. और इंडिया का डेवलपमेंट स्टेज की क्या क्या है, ये सब इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द लास्ट चैप्टर. क्योंकि लास्ट चैप्टर इज इम्पोर्टेंट. पढ़ने को तो वो बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, बट उसमें से क्वेश्चंस आते हैं. एक लॉन्ग क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर. तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन और द कंपेरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान वो करके चले जाएंगे तो हो जाएगा. अगर बचा माइक्रो इकोनॉमिक्स में इफ आई टॉक next, if we'll talk about the macroeconomics, the leftover chapter of government budget, money and banking. तो government budget में the most important thing is the identification of revenue expenditure, capital expenditure, revenue receipt, capital receipt with reason. One line का reason होता है either it will create your asset or decrease your liability, or it will neither create your asset or neither create your liabilities. तो one reason identification between this. मनी बैंकिंग चैप्टर्स में से क्रेडिट क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट विथ 1 न्यूमेरिकल ऑफ 1/LRR समथिंग. नेक्स्ट इज आपका फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन. लिख के ले लो, ये क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे. डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, the difference between depreciation and devaluation, difference between fixed exchange rate and flexible exchange rate, the reason for supply of foreign exchange and the reason for demand for foreign exchange, reason for demand for foreign exchange, reason for supply of foreign exchange. All these questions are important. चैप्टर 1 हमने नेशनल इनकम तो कवर किया ही था, ये सब चैप्टर्स हमने नहीं किया था क्योंकि ये सब चैप्टर्स गो थ्रू आउट द ईयर कवर करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये सब पढ़ के जाएंगे. Okay, all the best for economics exam. Bye.